Right, so in our last class, we started solving the past paper, and this will be second episode of this November 24 paper 2 variant 3. We have solved till the question of logic gates. We had finished this till this question number 8, and this was given in episode 1. We're starting episode number 2 from question number 9. So in question number 9, it's about the flowchart, and we'll have to do what? A flowchart checks. A flowchart checks that values stored in three variables are identical. If they are different, the highest value is stored in all three variables. So आपको सिर्फ मैच ये करना है कि तीनों वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज हैं क्या वो सेम है. अगर ऐसा नहीं है, डिफरेंट है, तो उनमें से जो हाईएस्ट है वो तीनों वेरिएबल में आ जानी चाहिए. तो यहाँ पर प्रोग्राम आपके सामने है. And what other thing examiner wanted? He says that identify four errors in the flowchart and suggest a correction for each error. You may label each error on the diagram. So you'll have to find out the errors. So I'll give you a few minutes so that you can, try and detect the errors yourself. So there are four mistakes in it. Have a look. Highest number तीनों variable में आना चाहिए. जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो आपने देखना होता है एरोस को, एरोस की डायरेक्शन ठीक है या गलत है. एरोस को चेक करो. इनपुट के लिए ये सिंबल यूज होता है, आउटपुट के लिए भी यही यूज होता है, पैराग्राम प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल यूज होता है. तो आप सिंबल्स को चेक करें. डिसीजन के लिए ये यूज होता है, चेक करें. कभी ऐसा होता है यस नो, अगर हमें एग्जामिनर ने यस नो दिया है, हमें उसको चेंज करना पड़े, नो को ऊपर करना पड़े, यस को नीचे करना पड़े, तो इस टाइप की चेंजेस भी होती हैं कभी. तो ये सारी चेंजेस आपको चेक करनी है इसमें. गो अहेड. आई रियली वांट दैट यू पिक अप द मिस्टेक्स योरसेल्फ. ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, और लगना है या एंड लगना है या नॉट लगना है. यस. I'm waiting for your feedback. No? So the first error will be in the first decision box that the yes and no will be swapped. Okay. Right, pick up yours. And why this change is needed. So you're saying if A is equals to B and B is equals to C, that means all three variable values are same. So it should stop the program. That's what examiner wanted. So correct modifications you came up with. Carry on. In the third decision box, it should be or instead of and. No, my dear. Look at this. How about this? This or to be replaced with what? And And if A is more than equals to B and A is more than equals to C, that means A is holding the highest number. So A should hold the highest number. A is bigger than B, A is bigger than C.
In that case, we are transferring the contents of A to B as well as C, because that's what examiner wanted. He wanted highest number to be stored in all three variables. So A agar bada hai, so that A should be stored in B as well as C. And lagta hai, why do we write and? And is always written when you want to test two conditions together at the same time. So when both the conditions should be true at the same time, then you want the change to be done. So two changes. And The one that says A arrow, the one that points to the right should point to the left. great, you're right. And the last one should be a rectangle. The A equals to C and B equals to C should be in a rectangle. Genius you are. Genius you are. Well done. So these were the four errors that you have pointed out. Got it? And you have suggested how these can be corrected. So actually you have answered the question. First to identify error number one. Error number one was in the first condition box, yes or no are written incorrectly. Correction, swap them. So you did that. In the second condition symbol you had or, that was an error. First you pick up the error and then advise the correction. Replace that or to end. And the error number three was the process box. The process box connected with the third decision symbol should have the arrow, but that's the correction. Yeah, wrong arrow was used in the third, wrong arrow was used in the second process box. This is the second. This one is first, this one is second. So you number them, or if you don't want to number them, you should be able to write properly so that examiner would get what you are trying to say. And then correction was, it should be other way around. The last one should not be a paragram. It has to be a, a rectangle. Now coming to this question, this one, and there are three trace tables. One, trace table number 2, 3. I'm sending you this to try and fill them up. And if you have difficulty, let me know which particular line causing a trouble for you. I've sent it to your class group. There's the part B also for this question. Sending you that too. In the program, do you see anything confusing? We just go through it quickly. An algorithm has been written in pseudocode. So there you see a pseudocode to check that the password meets a set of rules. Set of rules are to be checked. It says output, please enter password and input password. So it would prompt you to enter the password. Accept is true by default. You're making it true. If the length of the password, length of this entered password is less than 8 or the length is more than 20, then accept false, meaning it should not be accepted. It has to be false. Why? Because the length is below 8 or above 20. So anything between 8 and 20 is acceptable. That is why it says accept false. So what kind of check is this? This kind of check is called size check, the length check. Then it says lcase password is equals to password.
I'm just taking an example. If you look at this password here, examiner says that this is the sample password you're using for this first attempt, first table, my word. What if you have entered this password, my word, all caps? When you reach to this if command, what does it mean? So it says LK's password, that way would make it all smaller. And word will convert this whole password in small letter. It will match it with the password. So a small letter password is to be matched with the capital letter password. If it is like this, or uppercase password, meaning this uppercase password is equivalent to the uppercase password, meaning comparing it with the capital letters. Checking what at this stage? Checking whether your password is equivalent to all small or all capital letters. If there are all small letters or all capital letters, it should be rejected. That is why except false. Except false. Meaning all small letters, all capital letters are not allowed in that case. Moving forward, it says index 1 found false. By default found is false here. It says while not found, अभी अगर उसको मिला नहीं है found, what while not found, false है तो not found ही रहेगा, and except, और accept हो चुका है, and accept का मतलब accept true हो, accept true हो, and index, अभी तो index 1 है, less than हो किसके length of password कितना है 1 2 3 4 5 6 length of password, यानी 1 जो है smaller है 6 है, yes it is, accept भी है, accept अगर true हुआ, और अभी मिला, अभी नॉट फाउंड है, क्योंकि फाउंड अभी फॉल्स है। ये फाउंड इसने क्यों रखा है, क्या ढूंढ रहे हैं, व्हाट इज इट, व्हाट दैट एग्जामिनर इज ट्राइंग टू फाइंड आउट? इट सेज सब स्ट्रिंग होता है व्हेन यू वांट टू पिक अप समथिंग फ्रॉम द मिडल ऑफ द टेक्स्ट, so it says substring password, meaning pick up what from the password. Index number 1 say pick up from the index number 1, how many letters you want to pick up, just one letter. So go to password, go to an index number 1 and pick up one letter. So it's going to pick up this M for you. M pick करके लाएगा और उसको मैच करेगा. Is it equivalent to exclamation sign? No. Actually ये ट्राई कर रहा है exclamation sign find out करने की. अभी तो इसका exclamation मिलेगा नहीं. फिर ये दोबारा से इंडेक्स में +1 करेगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से मैच करेगा, फिर से इधर आएगा. अब इंडेक्स 2 हो गया है, तो सेकंड कैरेक्टर, सेकंड पोजीशन से एक लेटर निकाल के लाएगा, मीनिंग इट्स गोना पिक अप y दिस टाइम, और फिर y को मैच करेगा इस एक्सक्लेमेशन साइन से. स्टिल दे आर नॉट इक्वल, तो इसका एक्सक्लेमेशन साइन तो पूरे में ही नहीं मिलेगा. जब पूरे में नहीं मिलेगा तो फाउंड फॉल्स था, तो फॉल्स ही रहेगा व्हेन वुड कम आउट व्हेन दैट लूप विल एंड, तो फाउंड फॉल्स ही रहेगा. तो यहाँ पर आगे चेक कर रहे इफ नॉट फाउंड, मतलब अगर उसको नहीं मिला एक्सक्लेमेशन साइन तो एक्सेप्ट फॉल्स, तो फिर से ये रिजेक्ट कर देगा पासवर्ड को. अब पासवर्ड की रिजेक्शन जो हो रही है वो मल्टीपल केसेस की वजह से हो रही है. पहली रिजेक्शन यहाँ पर हो रही है जब लेंथ कम है या बहुत ज्यादा है. दूसरी रिजेक्शन यहाँ पर हो रही है जब सारे स्मॉल है या सारे कैपिटल है. थर्ड रिजेक्शन जो है वो यहाँ पर हो रही है लूप के अंदर वो ट्रू पे तो जाएगा ही जब जब एक्सक्लेमेशन साइन मिलेगा. अगर एक्सक्लेमेशन साइन नहीं हुआ तो क्योंकि ये फॉल्स था तो ये फॉल्स ही रहेगा जब लूप खत्म होगा, तो ये थर्ड रिजेक्शन हो गई, एक्सक्लेमेशन साइन इज नॉट देयर. उसके बाद बाहर आके चेक कर रहा है, अगर नॉट फाउंड नहीं मिला तो इसका मतलब फॉल्स है, और यहाँ आके चेक कर रहा है कि इफ एक्सेप्ट, मतलब अगर ये ट्रू है, एक्सेप्ट हुआ है, अगर ये ट्रू है, इसको आप इस तरह लिखें इफ एक्सेप्ट इज इक्वल्स टू ट्रू, या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इट लाइक दिस इफ एक्सेप्ट, तो आउटपुट करेगा एक्सेप्टेड, वरना आउटपुट करेगा रिजेक्टेड. अब एग्जामिनर आपसे चाहता ही है कि उसने आपको 3 अलग अलग पासवर्ड सैंपल दिए हैं. व्हाट इफ यू ड्राई रन योर प्रोग्राम, मीनिंग यू गो अप and assume that you are entering my word as a password, and then you gradually run your program and fill this table. Similarly, you can run it again with this password, and then you can run it again with this password. So which one is going to be accepted or rejected, तो आपको ये fill up करके दिखाना है. सही है, तो आप fill up करें, चेक करें, देखें क्या होता है.
सर इसमें फाउंड का इसमें फाउंड, इसमें फाउंड यहाँ पर यूज हुआ है, फाउंड को फॉल्स किया, फिर लूप में गया, फाउंड ट्रू उस वक्त होगा जब इसको एक्सक्लेमेशन मिलेगा। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं पूछ रहा था कि क्या नाम है फाउंड किधर है ऊपर। बेटा ये फाउंड जो है ना यहाँ पर है, जहाँ मैंने एरो दिखाया ना आपको, थर्ड लाइन नंबर 13 पे, और फिर इस फाउंड को इसने फॉल्स किया है, और यहाँ पे चेक कर रहे हैं नॉट फाउंड, नॉट फाउंड क्योंकि ये फॉल्स है तो नॉट फाउंड है, कंडीशन ट्रू होगी, अंदर आएगा। लेकिन अंदर आने के साथ साथ और भी चीजें चेक करेगा, एक्सेप्ट होना चाहिए, एक्सेप्ट मतलब ट्रू होना चाहिए, फॉल्स नहीं होना चाहिए। मतलब ये वाली कंडीशन भी ना चली हो, ये भी ना चली हो, जब ये दोनों नहीं चलेंगे तो ये फॉल्स होगा ही नहीं, ये ट्रू था तो ट्रू ही रहेगा। और साथ साथ एक और कंडीशन है कि इंडेक्स जो कि 1 है, ये 1 स्मॉलर है किससे, लेंथ ऑफ पासवर्ड। ये तीनों केसेस मैच करेंगे फिर आप अंदर जाएंगे। और जब अंदर जा रहे हैं इस लूप में तो क्या ढूंढने जा रहा है, ये ढूंढने जा रहा है एक एक लेटर को, आपके पासवर्ड के एक एक लेटर को ये मैच करेगा। जैसे अगर आपका पासवर्ड इसने बताया था ये पासवर्ड है, तो पहले एम को मैच करेगा एक्सक्लेमेशन साइन से, क्या ये एक्सक्लेमेशन साइन है, क्या ये एक्सक्लेमेशन साइन है, क्या ये एक्सक्लेमेशन साइन है, ये एक्सक्लेमेशन है। इस तरह ये हर लेटर को ग्रैब करके चेक कर रहा है वन बाय वन। तो ग्रैब इससे कर रहा है और चेक ये कर रहा है। अगर ये इसको एक्सक्लेमेशन मिला तो फाउंड ट्रू हो जाएगा, वरना नहीं मिला, अगर पूरे स्ट्रिंग को उसने चेक किया और नहीं मिला तो उसके बाद ये लूप जो है खत्म जब होगा तो यहाँ का भी, यहाँ ये वाली लाइन चली नहीं है, ये इसको मिला ही नहीं एक्सक्लेमेशन, जब मिलेगा नहीं तो ये वाला पार्ट चलेगा नहीं, तो फाउंड ट्रू होगा नहीं। तो फाउंड क्या था, फॉल्स, फॉल्स था तो फॉल्स ही रहेगा। और फिर ये आगे चेक कर रहे हैं इधर कि अगर नॉट फाउंड है, नॉट फाउंड है तो एक्सेप्ट को फॉल्स कर दिया उसने। फिर यहाँ आगे एक और कंडीशन लगाई है, एक्सेप्ट अगर हुआ है तो फिर एक्सेप्टेड लिखा हुआ आएगा, वरना रिजेक्टेड। रिजेक्टेड उसी सूरत में आएगा जब ये फॉल्स होगा। समझ आ गई आपके? जी सर। पहले वाला पासवर्ड क्या है, माय वर्ड, सब कैपिटल है। इसको अगर टेस्ट करें, एक्सेप्ट में ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पर एक्सेप्ट का कॉलम है तो आपको ट्रू लिखना चाहिए स्टार्ट में। राइट डाउन द वैल्यूज इन द टेबल एज दे चेंज। अब ये मैच करेगा इसकी पासवर्ड की जो लेंथ है वो क्या है, लेस देन 8 है, ये तो 6 है, लेस देन 8 है, इसका मतलब एक्सेप्ट में अब फॉल्स हो जाएगा, एक्सेप्ट में फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा कि सारे लेटर एल केस इक्वल्स टू पासवर्ड है, पासवर्ड तो ये था कैपिटल में, इसको स्मॉल लेटर में मैच कर रहे हैं, स्मॉल लेटर को मैच कर रहे हैं कैपिटल लेटर के साथ। क्या स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर सेम है? नहीं जी, ये अलग है, तो स्मॉल में वो कैपिटल में, तो ये सेम तो नहीं है। तो फिर क्या, कभी ऐसा भी होगा ना कि आपने ये पासवर्ड अगर एंटर किया हो, मान लेते हैं अगर कैपिटल में ना किया हो, आपने ये पासवर्ड स्मॉल लेटर में एंटर किया, जब आपसे इनपुट पूछेगा आपने स्मॉल में एंटर किया, तो जब यहाँ पर आएगा तो ये पासवर्ड है, इसको चेक कर रहे हैं एल के इस पासवर्ड से, यानी स्मॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्मॉल में तो है ही ऑलरेडी, तो फिर भी अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो माई वर्ड ही रहेगा।
तो ये भी स्मॉल है और ये भी स्मॉल है, तो स्मॉल स्मॉल मैच जब करेगा। अभी हमने जो पासवर्ड इंटर किया था वो कैपिटल में इंटर किया था, तो कैपिटल कैपिटल अगर हुए तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी, पासवर्ड और इस पासवर्ड का अपर केस में मैच करेगा, दोनों सेम है, यू केस दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम है तो एक्सेप्ट फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। अब आपको एक्सेप्ट फॉल्स करना चाहिए, तो एक्सेप्ट वापस उस टेबल में जाओगे, आप एक्सेप्ट को फॉल्स करोगे यहाँ पर, फिर उसके आगे वाले केस पे आ जाओगे। इस तरह से बढ़ते जाओ, आगे चेक करते जाओ। उर्वा कितना कर लिया आपने? हैव यू डन दैट फर्स्ट टेबल? I've done 2 of the tables. I'm on the last one. ओके। I'm coming, you do it. सॉरी बेटा, कितना हुआ? सर होने वाला हो गया। हो गया, भेजो। सन में
All right, my word, you saying true, false, false, false. Correct. There's one, and there's false. This one is rejected. Well done. Then the second one is true. You forgot to write false, false. Second one is at the bottom. Second one is at the bottom. Okay. It was my word. True, false, one, false, rejected, correct. And third one is accepted. Third one is accepted, true and false. And again, false. Again, false. And accepted. Well done. Well done. तो आपको मैं इसका सॉल्व भी भेजता हूँ. अगर आपको प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने में तो मुझे बताएं. मैं एक रिकॉर्डिंग में आ जाए एक सॉल्व कर भी देता हूँ. एक डिस्कस कर लेते हैं. ट्रू वाला डिस्कस कर लेते हैं. एक्सेप्टेड वाला एक. No, no, no. This looks horrible. Okay, keep an eye on this. It says enter password. This output would appear. Input password. So you're going to input this password. Why? Because examiner says that you input this password, my exclamation sign and hidden. So this password has been entered. Then it says accept true. So this accept true has been written here. There you go. Then checking the length. Is the length less than 8? So 3, 3, 6, and 2. No, it's not less than 8. Or more than 20? No, it's not more than 20. Then accept false. Then accept false. Except it won't come here. Condition is false because it wasn't less than, it wasn't more than. So true ही रहेगा ये. Accept is true and this will remain true. उसके बाद यहाँ पर आएगा मैच करेगा. Is it equivalent to, is the password meaning this password, is this password equivalent to all is small? No, they are not all small. Is this password equivalent to all capital? No, they are not all capital. So that means this line will not run. And index will become 1. There you go. Index will become 1. Found becomes false here. तो found false हो जाएगा. उसके बाद ये चेक करेगा. Not found. बिल्कुल ठीक है. अभी मिला नहीं है. Not found. It's true. Condition true. And accept भी true है. Accept भी true है क्योंकि accept को ऊपर हमने यहाँ true किया था. Accept true है. Index कितना है अभी? Index अभी 1 है. Less than हो किसके? Length of this password. अभी 1 इससे छोटा है. इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 8. So 1 स्मॉलर है 8 से. कंडीशन ये भी मैच कर गई है. ये तीनों कंडीशन मैच कर गई है. तो इसका मतलब इट वुड कम इनसाइड द लूप. ये लूप के अंदर आएगा और ये लूप तो बार बार चलेगा. अब सेवरल टाइम चलेगा. किस तरह? सब स्ट्रिंग पासवर्ड इंडेक्स कॉमा 1. इंडेक्स अभी 1 था तो 1 कॉमा 1 पहले पोजीशन से एक लेटर उठाएगा. 1 कॉमा 1 पहले पोजीशन से एक उठाएगा तो इसको मिलेगा क्या? m. और इसको मैच करेगा किसके साथ? एक्सक्लेमेशन साइन के साथ क्योंकि यह एक्सक्लेमेशन है.
और ये मैचिंग की नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो यहाँ से इंडेक्स में +1 कर देगा, अब इंडेक्स हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा वापस, और दोबारा से ये सारी कंडीशंस को फिर से चेक करेगा 2,1, दूसरी पोजीशन से 1 उठाएगा, तो दूसरी पोजीशन पे है स्मॉल y, उसको मैच करेगा एक्सक्लेमेशन के साथ। क्या एक्सक्लेमेशन है? ये भी एक्सक्लेमेशन नहीं है, तो ये फिर से अंदर नहीं आएगा, इंडेक्स +1 चलाएगा, तो ये 3,1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, नॉट फाउंड, हाँ जी नॉट फाउंड है, एक्सेप्ट अभी ट्रू है, इंडेक्स अभी 3 कम है 8 से, कंडीशन इज ट्रू। थर्ड पोजीशन ग्रैब करेगा, और इस मर्तबा जब ग्रैब करेगा तो एक्सक्लेमेशन लेकर आएगा, एक्सक्लेमेशन को मैच करेगा एक्सक्लेमेशन साइन के साथ, तो यहां से इसने एक्सक्लेमेशन उठाया, इसको मैच कर रही है इस एक्सक्लेमेशन साइन के साथ जिसके अंदर लिखा हुआ था, मैचिंग हो गई, तो इसने फाउंड को कर दिया ट्रू, तो इसलिए यहाँ पे जब थर्ड इंडेक्स हुआ तो फाउंड ट्रू हो गया, ये आपको ले लिखना है, थर्ड इंडेक्स पे ये हुआ कि फाउंड ट्रू, वरना तो फाउंड फॉल्स फॉल्स ही था, फॉल्स ही रहा, थर्ड इंडेक्स पे ये ट्रू हुआ है, जैसे ये ट्रू हो गया ऊपर जाएगा, वाइल नॉट फाउंड, अब तो मिल गया था इसको, फाउंड ट्रू हो गया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, एक्सेप्ट अभी ट्रू ही था, इंडेक्स लेस देन है, लेकिन क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, यहाँ पर एंड लगा हुआ है, एंड का मतलब सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए इन ऑर्डर टू रन द लूप, अब ये लूप नहीं चलेगा फर्दर, अब इस लूप के बाहर आएगा, और जब लूप के बाहर आएगा तो क्या करेगा, जब लूप के बाहर आएगा तो ये चेक करेगा, Sir, why is the index 4 then? Why did they +1? ये यहाँ पर आने था इसको, जब इसने फाउंड ट्रू हुआ था तो ये इंडेक्स में ऐड करके गया था, इंडेक्स कमांड इफ कमांड के बाद थी, और फिर ये इंडेक्स में ऐड +1 किया था, फिर ये ऊपर गया था मैच करने, तो मैचिंग वाज डन लेटर ऑन, बिफोर दैट इंक्रीमेंट वाज डन। Okay. उसके बाद यहाँ पर आएगा इफ नॉट फाउंड, इफ नॉट फाउंड है तो एक्सेप्ट फॉल्स, तो अभी तो नॉट फाउंड, अब तो फाउंड है, तो ये कंडीशन चलेगी नहीं, यहाँ क्या आएगा एक्सेप्ट, हाँ जी एक्सेप्ट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, क्योंकि एक्सेप्ट ट्रू था, तो ये आउटपुट दे देगा एक्सेप्टेड, तो ये आउटपुट आ जाएगा एक्सेप्टेड, दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। तो आप घर पे इसको ट्राई करना फिर से सॉल्व करने की, और आई एम श्योर कि आप सोना चाहिए, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन पहले किया है, टेबल बाद में बनाया है, इसने 3 पासवर्ड के साथ दिया, स्टेट द रूल्स दैट द पासवर्ड मस्ट मीट, कौन कौन से रूल ये चेक कर रहे हैं पासवर्ड, द प्रोग्रामिंग टेल्स यू व्हाट आर द रूल्स चेकिंग हियर, checking the length has to be 8 till 20. That means the smallest length can be 8, maximum length can be 20, not more than 20, not less than 20, all are going to be rejected. And this is the first case. Second case is all small letter, all capital letters to be rejected. There should be combinations. Next case is there should be exclamation sign stored somewhere in this password. It must be found in the password. So here you had to give this answer. So rule 1, rule 2, rule 3. What are the 3 rules? Maximum length 20 characters, minimum length 8 characters, all uppercase to be rejected, all lowercase to be rejected, must contain an exclamation sign. यहां तक करने के बाद अब आ गए डेटाबेस के क्वेश्चन पे। बिल्डिंग मटेरियल आर सोल्ड इन बैग्स, तो बिल्डिंग का जो मटेरियल है वो बैग्स के फॉर्म में सेल हो रहा है। न्यू डेटाबेस कॉल्ड बिल्ड स्टॉक, डेटाबेस का नाम जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सही है, तो इस यहाँ पे डेटाबेस का नाम है बिल्ड स्टॉक, हैज बीन सेट अप टू स्टोर द डिटेल्स अबाउट द मटेरियल फॉर सेल, और यहाँ से सारा मटेरियल है इसके बारे में डिटेल आपके सामने है। व्हाट एग्जामिनर वांटेड, राइट डाउन द आउटपुट, बोलता है रिजल्ट बताओ, आउटपुट क्या आएगा फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी स्टेटमेंट, जब आप ये स्टेटमेंट देंगे तो अब इसमें क्या, what examiner is trying to say here, select empty और name, इसका मतलब है empty ये और ये 2 कॉलम एग्जामिनर ने सेलेक्ट कर लिए, these are the 2 columns the examiner has chosen will be displayed,
ये डिस्प्ले होंगे, मतलब इससे डेटा आएगा। क्या डेटा आएगा? फ्रॉम बिल्ड स्टॉक। बिल्ड स्टॉक क्या है? टेबल का नाम है। तो आपको बताना होता है कौन से कॉलम चाहिए, कौन से टेबल से चाहिए। तो कॉलम तो ये दोनों हो गए, ये दोनों कॉलम का डेटा चाहिए हमें और इस टेबल से चाहिए, मगर कौन से रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, क्या कंडीशन है? तो कहते हैं वेयर द वेट किलोग्राम इक्वल्स टू 75। तो आप वेट किलोग्राम के कॉलम में जाओ, ये कॉलम है वेट किलोग्राम का, तो इसमें देखोगे इक्वल्स टू 75 कहाँ कहाँ है। इक्वल्स टू 75 यहाँ है, इक्वल्स टू 75 यहाँ है। तो ये दो रिकॉर्ड है जिसपे कंडीशन मैच कर रही है। सही है। अब मैं आपके सामने अब हम इसको देख रहे हैं। आखिरी केस रह गया ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय आपको लिखना होता है जब आप सॉर्टिंग कर रहे होते हैं। ऑर्डर बाय इज मस्ट। ऑर्डर बाय व्हाट? ऑर्डर बाय प्राइस पर बैग। प्राइस पर बैग के हिसाब से सॉर्ट भी करना है, प्राइस पर बैग के हिसाब से सॉर्ट करना है। तो आप सारे डेटा को तो नहीं देख रहे हैं, ये सारा डेटा आप हटा दो, ये हमारे काम का नहीं है, यूजलेस है, ये सब डेटा यूजलेस है। फॉर यू ओनली दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट। इसमें ये कह रहे हैं प्राइस पर बैग पे आपको सॉर्टिंग करनी है, इस पे सॉर्टिंग करनी है। जब आप सॉर्टिंग करते हैं, मेंशन नहीं है असेंडिंग और डिसेंडिंग, या तो लिखता है एग्जामिनर ASC या लिखता DESC। असेंडिंग और डिसेंडिंग बताता आपको, एग्जामिनर ने बताया ही नहीं है। अगर बताया नहीं है तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब स्मॉलर नंबर वुड कम फर्स्ट, लार्जर नंबर वुड गो डाउन। इसका मतलब आप इसको स्मॉलर नंबर वाले को ऊपर ले जाए। स्मॉलर नंबर ये है 62.75, ये 67 है, इसको आप ऊपर ले गए क्योंकि ये स्मॉलर है, दिस वाज स्मॉलर, ये स्मॉलर था 62.75। अब हमने इसकी सॉर्टिंग भी कर ली है। अब एग्जामिनर को हमें क्या आउटपुट बताना है? सारा डेटा नहीं बताना एग्जामिनर को, तो हमें सिर्फ दो डेटा बताना है जिसको मैंने टिक लगाया है, एम्प्टी नंबर एंड नेम। एम्प्टी नंबर एंड नेम हमें बताना है, तो हमें इसको बस ये बताना होगा। ये रिजल्ट है, ये दो रिजल्ट आपको लिख कर लगाने हैं आंसर में। गॉट इट? Yes, sir. ओके जी ओके जी सर। परफेक्ट। उसके बाद देखो कभी ऐसा होता है कि आपको SQL कमांड ये लिख कर दे रहे हैं और आपसे कह रहे हैं इसको एग्जीक्यूट करो और इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा। तो इसमें आपके लिए कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन होता है क्योंकि आप सिंटेक्स पूरा आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको कमांड का स्टार्टअप दे दिया हुआ है और आपको जो है वो बताना है कि आप क्या लिखेंगे। सेलेक्ट करना है SQL स्टेटमेंट टू डिस्प्ले ओनली द नेम। सिर्फ नेम डिस्प्ले करना है, तो सिर्फ नेम डिस्प्ले करना है। तो यहाँ नेम का जो कॉलम है इसकी स्पेलिंग चेक करो क्या है, NAME सिंगुलर है, जबकि यहाँ पर ये प्लूरल दे रहा है। ये कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं। नाम आप वहां वो लिखें जो ऊपर वाला है, जो टेबल का कॉलम का नाम यहाँ दिया हुआ है ये सही नाम है। सही है। तो आप सेलेक्ट के बाद यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट नेम, तो आपको नेम चाहिए किसका? ऑफ ऑल मटेरियल। अच्छा नेम फ्रॉम। फ्रॉम क्या होता है? फ्रॉम जो है ऊपर से ही छाप ले, फ्रॉम यही रहेगा क्योंकि एक ही टेबल पे तो आप काम कर रहे हैं। जो यहाँ था वो वैसे का वैसे ही रहेगा, फ्रॉम में कोई चेंजेस नहीं है। फ्रॉम वैसे ही रहेगा। फ्रॉम बिल्ड स्टॉक, दैट्स द नेम ऑफ द टेबल। ऑल द मटेरियल दैट आर आउट ऑफ स्टॉक, ऐसे सारे मटेरियल जो आउट ऑफ स्टॉक हैं। आउट ऑफ स्टॉक का कैसे पता लगेगा? आउट ऑफ स्टॉक का ऐसे पता लगेगा ये इन स्टॉक है। इन स्टॉक स्टॉक में है अगर यस है, आउट ऑफ स्टॉक ये नो वाले, नो 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 नो। एक्चुअली हमें ये नहीं बताना है कि कहाँ कहाँ नो है, हमें तो कंडीशन लिख के बतानी है कि इन स्टॉक इक्वल्स टू नो होना चाहिए। इन स्टॉक इक्वल्स टू नो, ये कर सकते हैं। या एक और तरीका भी हो सकता है, स्टॉक में हमारे पास कितने बैग्स पड़े हुए हैं? 50 पड़े हुए हैं। इसका मतलब स्टॉक में अवेलेबल है 50 बैग्स हैं। स्टॉक में 21 बैग्स है, लेकिन जहां नो है आप देखें स्टॉक में कितने बैग्स हैं? 0।
तो आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं, वेयर नंबर ऑफ बैग्स इक्वल्स टू 0, इसका मतलब स्टॉक खत्म हो गया। तो ये दो तरह से ये कंडीशन लिखी जा सकती है। यहां पर आप इस तरह से लिख सकते हैं वेयर, या तो आप लिखे नॉट इन स्टॉक, नॉट, ऊपर जाके देखें नॉट इन स्टॉक की स्पेलिंग कैसी है, आई कैपिटल है, इन स्मॉलर है, स्पेस कोई नहीं है, एस कैपिटल है, एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है, नॉट इन स्टॉक। ये लिखे, ये भी सही था। या फिर ये भी लिख सकते थे, ये लिखते, या फिर ऐसे लिखते इन स्टॉक इक्वल्स टू फॉल्स। फॉल्स क्योंकि बूलियन है ना, यस और नो होती है, बूलियन होता है, तो आप फॉल्स लिखे इस तरह से। और अगर नो होता तो एक और तरीका भी हो सकता था, इसको इसको इस तरह भी चेक कर सकते थे। यहाँ पे चॉइसेस है, मैं डबल स्लैश लगा रहा हूँ, इसका मतलब होता है और, या इसको ऐसे लिखें और नो। मार्क स्कीम में शायद एग्जामिनर ने कहीं इस फॉल्स को इन्वर्टेड कॉमा में भी कन्वर्ट किया होगा, लेकिन बूलियन डेटा को आप इन्वर्टेड कॉमा में कन्वर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहां से देखकर हमें पता तो नहीं लग रहा कि ये बूलियन है कि नहीं है। ये तो एग्जामिनर ने बताया होता हमें कि इन स्टॉक बूलियन है तो हम मान लेते हैं, ये तो स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो ये वजह है कि एग्जामिनर कोटेशन मार्क और विद कोटेशन मार्क, विदाउट कोटेशन मार्क एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर बूलियन मेंशन कर दे तो फिर कोटेशन कभी नहीं लगाओगे। इसी तरह अगर हमें बुलियन का पता नहीं है कि बुलियन है या नहीं है, वाज़न्ट गिवन इन द क्वेश्चन, तो हम इसको भी कोटेशन मार्क में लिख सकते हैं, लेकिन बगैर कोटेशन मार्क के ज्यादा अप्रोप्रिएट है। इस तरह भी क्राइटेरिया लिख सकते हो, मैंने बताया था ये क्राइटेरिया भी हो सकता है कि नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स की स्पेलिंग क्या है, नंबर बैग्स, ऑफ नहीं है, नंबर बैग्स। तो यहां लिखे नंबर बैग्स इक्वल्स टू 0, नंबर बैग्स 0 है। ये आपके पास जो है स्टेटमेंट बनेगी। सेलेक्ट के बाद आप बताते हैं कि कौन सी फील्ड है, कौन सी फील्ड है। तो फील्ड हमारे पास थी नेम, जो एग्जामिनर को चाहिए थी। एग्जामिनर को सिलेक्ट करने थे नेम फ्रॉम बिल्ड स्टॉक के टेबल से, और फिर मैंने बताया कि कंडीशन आप इनमें से कोई भी लगा दो, क्योंकि इसको वो चाहिए जो आउट ऑफ स्टॉक है, जो आउट ऑफ स्टॉक है। गॉट इट? हेलो? Yes. Yeah. आगे ये आपसे कहता है explain how another SQL statement using a different field could be used to display the same information। वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ बता दिया। एक्चुअली ये वाला काम अगर हम यहाँ करते, वेयर आप खाली ये लिख के दिखा दो वेयर नंबर ऑफ बैग्स इक्वल्स टू दिस, तो ये दूसरा तरीका हो सकता है, वेयर नंबर ऑफ बैग्स इक्वल्स टू दिस। या मैंने आपको नॉट इन स्टॉक से लिख के दिखाया था, तो आप फॉल्स वाला यहाँ लिख दें। दो मैंने कोई एक मेथड ऊपर लिखे, एक मेथड नीचे लिखे, चलेगा। गॉट इट? Yes. इसके बाद जो है एक क्वेश्चन है आ रहा है, वो 15 मार्क का क्वेश्चन है, मगर अब टाइम हमारे पास बचा नहीं है, और मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप खुद से सॉल्व करना, जितना भी हो जाए, जितना भी आपको समझ आए, 5 लाइन्स, 10 लाइन्स, 100%, 10%, आप खुद से पढ़ो। नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा आपको सॉल्व करा दूंगा ये। ओके, ये मैं आपको भेज रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करना, सजेशन आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सर इस वाले में यानी कितना टाइम लगाना चाहिए मैं मैक्सिमम, यानी मैंने एक दो सॉल्व करने की कोशिश की है तो बहुत टाइम लगता है। 15 मार्क का है ना, तो मेरे हिसाब से 15 मार्क के क्वेश्चन में आपका ये ले जाएगा हाफ एन आवर, हाफ एन आवर ले जाएगा बेटा ये आपका। और बाकी आप अगर देखें तो बाकी का पेपर आप 1 आवर 45 मिनट्स है ना, तो 30 मिनट्स आप उसके लिए रखें, वो आप एंड में शुरू करना है, स्टार्टिंग में नहीं, एंड में रखना उसको। पहले आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करना, और जो आपको 100% आंसर आता हो वो आप सॉल्व करें। मेरी एपिसोड नंबर 1 में आप देखना उर्वा ने कितना अच्छा सा रिस्पॉन्ड किया था, बहुत तेजी से आंसर किए थे। तो ओवरऑल पेपर सॉल्व करने में हो सकता है आपको 30 मिनट्स लगे,
या 40 मिनट्स लगे, बाकी का जितना भी टाइम है वो आप उसको देना, क्योंकि आपको रीड भी तो करना है। पहले तो रीडिंग को ही करने में, रीड करने में इसको 10 मिनट्स चाहिए, अच्छे से रीड करोगे। फिर ये डिसाइड करो कि इसमें कितने किस्म के एरेज यूज हो रहे हैं। अभी मैं आपको हिंट नहीं दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप ट्राई करें इसको करने की, और जब आप ट्राई कर लेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ फिर, ओके, ताकि आप भी फिर फीडबैक दे सकेंगे मुझे। जी ओके ओके, टेक केयर देन। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ये इसका स्क्रीनशॉट भेज दें, मैं भेज दिया आई कर थिंक लूँगा मैंने, अच्छा से। भेज दिया मैंने आई थिंक। नहीं भेजा है? नहीं भेजा है, भेज दिया, सिस्टम से थैंक भेज यू। दिया। अल्लाह जी, हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।